اسرائیل کے منہ پر 8-8 کلو کے تھپڑ پڑ رہے ہیں اور اسرائیل کا منہ لال ہو چکا ہے۔ نتن یاہو بہت پریشان ہے اور اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی فوج مسلسل ناکام ہو رہی ہے، ہر محاذ پر ہار رہی ہے۔ ایران کے محاذ پر بھی اس کو ناقابل تصور شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس بار ایک اور محاذ جنگ ایسا سجا ہے جہاں پر مسلسل اس کی فوج ہار رہی ہے، لاشیں گر رہی ہیں، زخمی ہو رہے ہیں اس کے فوجی، اور اس کی ٹیکنالوجی بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح برقی پرندوں نے 8-8 کلو کے پرندوں نے پوری اسرائیل کی فوج کو پہلے دبوچا اور اس کے بعد پرخچے اڑا دیے، بھون کر رکھ دیا اس کی فوج کو، اور اس کے فوجی اب بھاگتے پھر رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن انہیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا، لیکن وہ دشمن بہت ہی نچلی پرواز کر کے آ رہا ہوتا ہے اور وہ اچانک آ کر ان کو دبوچ لیتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے اور کئی فوجی مر جاتے ہیں۔ جو بچ جاتے ہیں ان کا حال مرنے والوں سے بھی برا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر آسمان کی طرف ہی دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ محاذ ہے یہ لبنان کا، جہاں حزب اللہ لڑ رہی ہے اور مسلسل بہت ٹف ٹائم دے رہی ہے اسرائیل کو۔ اسرائیل کے فوجی اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے ساتھ لبنان میں اترے ہوئے ہیں، گراؤنڈ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر بستیوں کی بستیاں اجاڑ رہے ہیں، اور وہاں پر بالکل غزہ والی صورتحال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں پہلے عمارتیں تھیں، گھر تھے، وہاں پر اب چٹیل میدان ہے، وہاں پر ملبہ پڑا ہوا ہے انہی عمارتوں، انہی گھروں کا، اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے لبنان میں مظالم سے۔ لیکن دوسری طرف حزب اللہ جو ہے وہ مسلسل مزاحمت اپنی جاری رکھے ہوئے ہے، اور حزب اللہ نے ایک بہت ہی زبردست طریقہ اپنایا ہے اسرائیل کی فوج کو نشانہ بنانے کا اور اس کو تباہ کرنے کا۔ اس کے جو FPV ڈرونز ہیں، یہ درمیانے سائز کے ڈرون ہیں، اور یہ ایسے ڈرون ہیں جو بہت تیزی سے اپنے ہدف کی طرف جھپٹتے ہیں، آتے ہیں، نچلی پرواز کرتے ہیں۔ 8-8 کلو ان کا وزن ہے، جس میں تقریباً 6 کلو سے 7 کلو تک بارودی مواد ہوتا ہے، اور یہ آ کر جب ٹکراتے ہیں دشمن سے یعنی اسرائیلی فوج سے، تو اسرائیلی فوج کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور نہ صرف اسرائیلی فوج کے پرخچے اڑ جاتے ہیں بلکہ اس کی بخترون گاڑیوں، ٹینکوں، سرویلنس کے نظام اور جو فوجی بیسز ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہیں یہ FPV ڈرونز جو حزب اللہ فائر کر رہی ہے اور مسلسل چلا رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ FPV ڈرونز آتے ہیں حزب اللہ کی طرف سے فائر کیے جاتے ہیں، تو یہ عام سے ریڈیو سگنلز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی خاص ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی غیر معمولی قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، بہت ہی سادہ ٹیکنالوجی رکھی گئی ہے۔ یہ ریڈیو سگنل سے چلتے ہیں یا پھر فائبر آپٹک کے ذریعے یہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ اپنے ہدف کی طرف بہت ہی نچلی پرواز کر کے آتے ہیں، لیکن بہت تیزی سے آتے ہیں۔ جب یہ اپنے ہدف کی طرف تیزی سے آتے ہیں تو دوسری طرف کھڑی ہے اسرائیلی آرمی، جو بہت زیادہ مہنگے ہتھیار لے کر اور سرویلنس کا ایک انتہائی جدید ورلڈ کلاس نظام لے کر کھڑی ہے، لیکن وہ اس لیے فیل ہو رہی ہے اور مسلسل فیل ہو رہی ہے کیونکہ وہ صرف جو اونچے آبجیکٹ ہوتے ہیں صرف انہی کو دیکھ پاتی ہے، جو اونچائی سے آ رہے ہوتے ہیں، جو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں انہی کو پہچان پا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے جو ریڈارز ہیں یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اسرائیل کے FPV ڈرونز کو نہیں پکڑ پا رہے جو حزب اللہ لانچ کر رہی ہے۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ جب وہ FPV ڈرون ان کے قریب آتا ہے تو وہ چونکہ ایک پرندے سے تھوڑے بڑے سائز کا وہ ڈرون ہے، تو اس کو پرندہ ہی کنسیڈر کرتا ہے وہ ریڈار، اور ریڈار کہتا ہے کہ یہ کوئی آبجیکٹ ہے لیکن یہ دشمن آبجیکٹ نہیں لگ رہا، یہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اسی لیے کوئی کسی قسم کا الرٹ ہی جاری نہیں کیا جاتا۔ اور چونکہ وہ الرٹ ہی جاری نہیں کرتا تو اچانک یہ ڈرونز آتے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کو دبوچ لیتے ہیں اور انہیں تباہ کر دیتے ہیں، ان کے ارد گرد کا جو پورا ایک علاقہ ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ڈرونز قریب آتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ حزب اللہ راکٹس بھی فائر کرتی ہے۔ جب وہ راکٹ فائر کرتی ہے تو ایک پورا ماحول بن جاتا ہے اور آبجیکٹس مختلف طرف سے اڑ کر آ رہے ہوتے ہیں۔ کم از کم یہ جو ڈرون ہیں ان کو جب ریڈار پڑھنا شروع کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو ایک بڑے سائز کا پرندہ میری طرف آ رہا ہے، یہ تو کوئی ایسا کوئی ڈرون یا کوئی ایسا آبجیکٹ نہیں ہے، کوئی پروجیکٹائل ایسا نہیں ہے جو دشمن سمجھا جاتا ہو یا خطرہ سمجھا جاتا ہو۔ تو وہ کسی طرح کا بھی کوئی سگنل ہی نہیں دیتا اور ریڈار خاموش رہتا ہے، اور انتہائی مہنگا ملینز آف ڈالرز کی جو ریڈار ہیں وہ بتاتے ہی نہیں اسرائیلی فوج کو کہ ایک خطرہ ان کی طرف مسلسل بڑھ رہا ہے اور تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ دوسرا کام یہ ہو رہا ہے کہ ایک جو یہ FPV ڈرونز ہیں یہ بہت نچلی سطح پر پرواز کر کے بہت تیزی سے اپنے ہدف کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ نچلی سطح پر پرواز
करते हैं तो इनको बहुत सारे रडार्स पढ़ ही नहीं पाते, उनकी डिक्शनरी में इतने साइज़ की कोई चीज़ नहीं है और इस जो एल्टीट्यूड पर ये आते हैं वो ऊंचाई भी नहीं है, तो इसलिए वो इसको ख़तरा ही कंसिडर नहीं करते और इसीलिए बहुत ज़्यादा इसराइली आर्मी इस बात को पे फ़िक्रमंद है कि हमारे जो फ़ौजी हैं वो बहुत तेज़ी से हलाक किए जा रहे हैं, निशाना बनाए जा रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता, जब ख़तरा उनके सर पे पहुंच जाता है तब उन्हें नज़र आता है और उसके बाद वो ख़तरे को रोक नहीं पाते, ना उनका कोई सिस्टम रोक पाता है और वो ख़तरा करीब आता है, अचानक एक धमाके से फटता है और बहुत सारी लाशें हर तरफ बिखर जाती हैं। अब जो हिज़्बुल्लाह है उसने अब तक जो पिछले कुछ अरसे के दौरान मरकावा टैंक्स का एक कब्रिस्तान जो है वो लबनान में बना दिया है। ये मरकावा टैंक्स इंतहाई महंगे टैंक्स हैं, $1-1 करोड़ की टैंक हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि $10 मिलियन का एक टैंक है जो फुली इक्विप्ड है, जो लबनान भेजा गया है, जदीद तरीन उसमें आलात लगे हुए हैं और ये जदीद तरीन टैंक हैं और ये ग्राउंड फोर्सेस के लिए इसलिए भेजे गए थे कि यहाँ जब इसराइली फ़ौज उतरेगी और आगे बढ़ेगी, पेशकदमी करेगी, तो सामने से जिस तरह का भी रिएक्शन आ जाएगा हिज़्बुल्लाह की जानिब से वो इतना तगड़ा और जानदार नहीं होगा कि मरकावा टैंक्स का मुकाबला कर सके। और मरकावा टैंक्स अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको दीवार के पीछे से देख भी लेंगे, उनको बहुत दूर से देख भी लेंगे और उनको बहुत ही प्रिसाइजली निशाना बनाकर तबाह कर देंगे। तो अब अगर उन पर किसी तरह से हमला होता है तो वो टैंक संभाल लेंगे अपने आप को और उसकी छाँव में जो फ़ौज आगे बढ़ रही होती है, पेशकदमी कर रही होती है, उनकी भी वो हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन अब तक अंदाज़ा ये होता है कि 100 से ज़्यादा मरकावा टैंक्स लबनान में तबाह किए जा चुके हैं, जो कि गैर मामूली फ़तह है हिज़्बुल्लाह की। और हिज़्बुल्लाह ने इन्हीं FPV ड्रोन से, इन्हीं 8 किलो के परिंदों से, 8 किलो के थप्पड़ों से उसके टैंकों का भी कब्रिस्तान वहाँ पर बना दिया है और इस तरह से हमला किया जा रहा है कि एक तरफ से FPV ड्रोन्स आके उन टैंकों से, उनकी गाड़ियों से, जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं उनसे टकराते हैं और उसी वक्त साइमल्टेनियसली एक हमला शुरू हो जाता है, रॉकेट हमला, जिसके नतीजे में हर तरफ तबाही फैल जाती है। और इसके बजाय कि इसराइली फ़ौजी उस ख़तरे का मुकाबला करें और उस तरफ कोई फायरिंग करें, किसी तरह का कोई रॉकेट दागें, वो बमुश्किल अपनी जान बचाकर भाग पाते हैं और बिखर जाते हैं। और जब वो बिखर जाते हैं तो फिर शुरू होती है स्नाइपर शूटिंग और स्नाइपर शूटिंग में हिज़्बुल्लाह के जो स्नाइपर्स हैं वो कमाल महारत रखते हैं और बहुत ही प्रिसाइजली निशाना लगाते हैं। और देखा यह गया है कि बेशतर इसराइली फ़ौजी जो हैं उनके जिस्म के ऊपर के हिस्सों पे या फिर उनके सरों को निशाना बनाया गया है इन्हीं स्नाइपर्स की तरफ से हिज़्बुल्लाह के, और उनको हलाक कर दिया गया है। जो एक जत्थे की सूरत में ये लोग आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए आगे आ रहे होते हैं, किसी जगह पर हमला करने आ रहे होते हैं लबनान में, तो वहाँ पर स्नाइपर्स जो हैं एक साथ कम से कम 4 शॉट्स लेते हैं और 4 जो उनके फ़ौजी हैं उनको एक ही शॉट में उड़ा देते हैं और उसके बाद एक बौछार भी करते हैं गोलियों की, जिससे जो बौछार करने की वजह से जो फ़ौजी वहाँ पे भाग रहे होते हैं, पलट कर भाग रहे होते हैं, अपने साथियों की लाशें देखने के बाद इबरत के तौर पे भाग रहे होते हैं, वो भी निशाना बनते हैं, या तो वो बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं या वो भी हलाक कर दिए जाते हैं। अब मजमूई तौर पे जो फिगर्स सामने आ रही हैं वो आ रही हैं कि तकरीबन अब तक इस पूरे जंग में जो इसने लबनान के साथ छेड़ी है, बल्कि जंग के बजाय ये एक तरफा जंग है जिसमें इसराइल जो है वो मुसलसल बहुत ही बुरी तरह हमले कर रहा है और दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह महदूद पैमाने पर अपनी कम वसाइल के तहत उनको भरपूर जवाब दे रही है। इस महदूद जंग के बावजूद, वसाइल से लड़ने वाली जंग के बावजूद हिज़्बुल्लाह ने अब तक 18 इसराइली फ़ौजियों को हलाक कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी फिगर है अगर इसराइली आर्मी के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वो वहीं पर अपने फ़ौजी भेजते हैं जहाँ पर पूरा इलाका साफ़ हो चुका होता है। लेकिन अगर एक इलाका मुकम्मल तौर पर क्लियरेंस के बाद वहाँ पर उसके फ़ौजी भेजे जा रहे हैं और वो निशाना बन रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, तो इसराइल के लिए बहुत तशवीश की बात है। इसका मतलब यह है कि हिज़्बुल्लाह कहीं ना कहीं ताक में बैठी उसका वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है कि कब वो उसके जाल में आके फंसते हैं और मौत के जाल में आकर जैसे ही वो फंसते हैं इसराइली फ़ौजी, हिज़्बुल्लाह उन्हें निशाना बना लेती है और ताक कर उनको मारती है। अब जहाँ पर इतने फ़ौजी, तकरीबन 18 फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं इसराइल के, वहाँ ईरान जंग की भी फिगर्स आ रही हैं जिसमें उसके कम से कम 9,000 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। और इतने बड़ी पैमाने पर जब लबनान से ताबूत जा रहे हैं और ईरान से ज़ख्मी फ़ौजियों से उसके तेल अवीव के अस्पताल और इसराइली जो शहरों के अस्पताल भर चुके हैं, तो अब उसके बाद इबरत के तौर पर इस सारे मंज़र को देखा जा रहा है ख़ुद इसराइल में भी, और यहूदी जो हैं वो अपनी ही फ़ौज में भर्ती होने से इनकार कर रहे हैं। इसके बावजूद कि इसराइली फ़ौज की जानिब से उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर धमकियाँ दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने भर्ती ना हुए वो फ़ौज में तो उनको बहुत ही सख्त किस्म की सज़ाओं का सामना करना पड़ सकता है। और इसी दौरान
जब इसराइली आर्मी चीफ क्नेसेट में आया, यानी कि उनकी पार्लियामेंट में आया और उनके अरकान पार्लियामेंट से यहूदियों के खिताब किया उसने, तो उसने कहा कि मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मैं आपको ये बताने आया हूँ कि हमारी आर्मी पिघल रही है, मुसलसल टूट रही है, उसको फ़ौजियों की शदीद क़िल्लत का सामना है, बहुत ही कमी हो रही है और तकरीबन 15,000 फ़ौजी हमें फ़ौरी तौर पर चाहिए, भर्तियाँ हमें फ़ौरी तौर पे खोलनी पड़ेंगी और आप लोग इस बात को कानून का हिस्सा बनाएं, कानून साजी करें इसके लिए कि हर शहरी जो है, जो कुछ लोग मज़हब की आड़ में छुप कर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो तौरात का मुताला करना है और हमने अपने आप को तौरात के लिए वफ़ कर दिया है, तो वो तौरात का मुताला करने के बजाय उन्हें फ़ौज में लाने पे ज़ोर दिया जाए और उनको भी फ़ौज में भर्ती किया जाए, ताकि हमने जो ये कई महाज़ों पे जंग छेड़ी हुई है, इन महाज़ों पर हम अपने लोगों को भेज सकें। लेकिन सूरत हाल ये है कि इसराइल की आर्मी तेज़ी से बिखर रही है। उसमें जो इसराइल के जो शहरी हैं वो अपनी फ़ौज को में भर्ती होने से इनकार कर रहे हैं। इसराइल की आर्मी लबनान में 8-8 किलो के थप्पड़ खा रही है। नेतन्याहू का मुंह लाल हो चुका है, बारूदी मवाद उसके फ़ौजियों को बुरी तरह चाट गया है और लबनान से ताबूत आने का सिलसिला तेज़ हो चुका है। और इस सब सूरत हाल में जो इसराइल में बैठे लोग हैं वो इस वक्त अपने ही मुल्क को टूटता हुआ देख रहे हैं और इबरत हासिल कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।